Guys, in this video we are going to know about the M-Pharma courses and what exactly M-Pharma is. Sorry for my bad throat because last month is not that much visible for me. That's why my video is not coming to you. It's okay. I'm trying and I will try my best. Okay, sorry. So hi, my name is Sugandha and I'm not going to say welcome back to my channel, but my name is Sugandha. Many of you have the questions related to what will we choose, M-Pharma or MBA. So today I'm here to discuss about the M-Pharma. Then you will able to compare M-Pharma with the MBA. So basically there is a no comparison actually. Every course has their uniqueness and have their own potential and that need something to grow in the field. If I say कि ये वाला अच्छा कोर्स है ये कर लो, ये वाला अच्छा कोर्स है ये कर लो, no, because that is not going to suit or that is feasible for everyone, because all have the different choices. Those who want to do the research, they don't choose the MBA. Those who want to be a business analyst, they will not choose the M-Pharma. So those who really want to go on the branding will able to choose the M-Pharma, and that will be feasible for him. No. That's the answer. So let's go for the briefly about what is M-Pharma and then what is MBA. In next video I'm going to discuss, and then you able to, and maybe you will guess. So M-Pharma is not just a study, it's something specialization. You are going to decide your career from here. Whatever you will choose in your M-Pharma, that will be your destiny and decided where your career is going to. So it's not just कि आपने B-Pharma में particular इतने सारे subjects पढ़े, पास हो गए, ठीक है. यहाँ से real game start होता है जब आप अपने career के लिए पहला step रखते हो. So wisely choose the subject. So one by one, if I discuss about the subjects in career, let's start. First one is pharmaceutics. If someone is loving the formulation, dosage form, industry में work करना, tablet formulation, capsules, syrups, injectables, they can go for this. And I think इसमें भी formulation scientist तक बन सकते हो. So I think this is a very good and gateway for you guys. So if you really like and you have the interest related to that, you can choose for that. Second is pharmacology. Those who really want to know about how the drug is going to act on the body and how the body is going to respond for the drug, like the effect, pharmacodynamic and pharmacokinetic. So they are like bioavailability के बारे में जानना, systematic circulation में कैसे drugs act करते हैं, why we are going to take the medicine on time and what the sustained release. So these are the some experiment, those who really love the research work, lab works and doing the research on the animals, they can choose for this. I think this career is very blooming, like those who really want to go on the pharmacovigilance, clinical research, clinical trial, data analyst, medical writing, this is very gateway for them. So all the best, choose for this career because it's going to bloom. Third one is pharmaceutical chemistry. If you really want to know about the synthesis of drug, a new drug development, and basically they love the research and development jobs, जिनका है सपना कि R&D में जाना है, एनालिसिस करना है, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स. सो दे कैन चूज फॉर द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री. एंड मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जिन भी बच्चों का सपना है, मतलब जिनको भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मिलता है, तो प्लीज़ डू समथिंग लाइक अ टेक्निकल ऑल्सो. एक किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे अपना हैंड्स प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, जैसे कि HPLC, HPTLC एंड बहुत सारे ड्रग एनालिसिस के लिए होते हैं, है ना, उन पे प्लीज़, वो काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा. UV इन सब पे जो होता है, आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए. दैट विल हेल्प यू टू गेट द जॉब फर्स्ट. मार्केट में आपको भीड़ मिलने वाली है जब आप जॉब के लिए जाओगे, तो आप उनसे कैसे हटके क्या है आप में. द यूनिकनेस इज समथिंग विच यू हैव द हैंड्स ऑन प्रैक्टिस. आपके पास वो एक्सपीरियंस है, वो टेक्निकल स्किल है, दैट विल हेल्प यू. सो थिंक अबाउट दिस. ओके, जस्ट आपको थ्योरी पढ़ के बस पास हो गए, थीसिस सबमिट कर दी, कंप्लीट, नो. आपको पता होना चाहिए इन सब चीज़ों का.
ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी एनालिसिस के बारे में, जैसे कि टेस्टिंग, क्वालिटी चेक, कंप्लायंस जो बनते हैं, ये स्टेबल जॉब है। फार्मा कंपनीज में बहुत ज़्यादा डिमांड भी होती है और गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छा भी जॉब रोल है, क्योंकि अगर आप एम फार्मा करके जाते हो तो उसके बाद आपकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है इसमें, तो यू कैन चूज फॉर दिस फील्ड ऑल्सो। फिर उसके बाद है फार्मेसी प्रैक्टिस, दोज हु पेशेंट सेंट्रिक, जो कि होते हैं कि हॉस्पिटल और पेशेंट काउंसलिंग में जाना चाहते हैं, तो क्लिनिकल यूजेस के बारे में, तो दे चूज फॉर द फार्मेसी प्रैक्टिस। उसके बाद आता है क्लिनिकल रिसर्च, रेगुलेटरी अफेयर्स भी चूज कर सकते हो, फार्माकोविजिलेंस भी होते हैं, इनमें भी होते हैं, और ये ट्रेंडिंग ब्रांचेस हैं, गुड फॉर द MNCs एंड गुड सैलरी पैकेज, सो यू कैन चूज फॉर दिस। अगर मुझसे पूछा जाए कि बेस्ट ब्रांचेस कौन सी है, तो मैं क्या बताऊंगी, मैंने इसको डिवाइड कर रखा है 4 पैरामीटर्स पे। लाइक इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द मनी एंड जॉब, क्योंकि सबके बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि दीदी मुझे बताओ पैसा पैसा, तो ठीक है, मनी एंड जॉब के बेसिस पे क्वालिटी एश्योरेंस चूज करो, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी जैसे कि फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल रिसर्च, या रेगुलेटरी अफेयर्स जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड में है। सेकेंड, अब जिनको रिसर्च एंड PhD में जाना है वो क्या करें, तो उनके लिए बेस्ट है फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। उसके बाद है अगर हॉस्पिटल के लिए चूज़ करते तो फार्मेसी प्रैक्टिस बेस्ट है, या क्लिनिकल फार्मेसी बोलते हैं। और अगर जिनको अब्रॉड जाके स्कोप बनाने हैं तो प्लीज़ आप चूज़ करो क्लिनिकल रिसर्च, रेगुलेटरी अफेयर्स, PV रोल्स, क्योंकि वहाँ पे MNC डेलॉयट जैसी कंपनीज मिलती है, TCS जैसी कंपनी मिलती है, Accenture जैसी बिग कंपनीज हैं, तो यहाँ पे जॉब रोल्स निकलते रहते हैं। IQVIA हो गए, तो यू कैन चूज फॉर द क्लिनिकल रिसर्च एंड रेगुलेटरी अफेयर्स एंड फार्माकोविजिलेंस एंड मोर ओवर द फार्मासिस्ट जॉब रोल ऑल्सो, दैट कैन, वहाँ तो बहुत ही बेस्ट है यार। सच बताऊँ तो अब्रॉड में जितनी वैल्यू दी जाती है फार्मासिस्ट को, आई थिंक यहाँ देने लगे तो देयर इज़ अ डिफरेंट जॉब रोल। एक फार्मासिस्ट की अलग ही वैल्यू और B फार्मा की तो अलग ही। और अगर आपको वैल्यू बढ़ाना है तो क्या करना है, स्किल्स को ऐड करना है और अपने इंटरेस्ट पे वर्क करना है। अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट चूज करो वाइजली, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में एम फार्मा के बारे में बताया। अब मुझे आपसे ये सपोर्ट चाहिए कि अगर मेरे इस वीडियो पे 50 कमेंट्स चाहिए MBA से रिलेटेड, तो मैं बताऊंगी कि MBA कहाँ से करना चाहिए, ऑनलाइन करें कि रेगुलर करें, क्या उनके बेनिफिट्स हैं, पर्क्स हैं, ठीक है। ये सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए टाटा और बाय एंड थिंक वाइजली। अगर आपको लगता है कि डिग्री से सब कुछ हो जाएगा तो आप यहाँ पे गलत हो, ठीक है। तो जिनको लगता है कि GPAT क्वालिफाइड कर लिया है वही बच्चे लाइफ में सक्सेस कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर उनके पास सॉफ्टवेयर स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, इंटरव्यू के स्किल्स नहीं है, तो दे ऑल्सो गेट द सफर मोस्ट, ओके। सो बिल्ड योर स्किल्स एंड आई विल नॉट सजेस्ट कि कोई भी गैप ईयर लें। आई विल सजेस्ट कि प्लीज़ टेक इट सीरियसली। एम फार्मा को अच्छे कोर्सेज अच्छी जगह से करें, अच्छे NIRF रैंकिंग वाले कॉलेजेस से करें, जिनकी वैल्यूड हो, जहाँ की प्लेसमेंट भी हो, तो आपको कुछ ज़्यादा ही अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। और लास्टली मैं यही कहूँगी कि तो यहाँ से रियली आपकी लाइफ स्टार्ट होने वाली है, तो अपना डिसीज़न गलत मत लेना, टेक योर डिसीज़न वाइजली, और किसी के इन्फ्लुएंस में आके मत लेना। आप मार्केट को रिसर्च करो कि 10 इयर्स के बाद आपका क्या ट्रेंड में है, 10 इयर्स के बाद क्या ट्रेंडिंग में है, उसके बेसिस पे ही चूज़ करो करियर को, ठीक है। और ऐसे नहीं कि जो ट्रेडिशनल चल रहा है आप उसको फॉलो करोगे तो आपको बहुत हाई पैकेज सैलरी मिल जाएगी, नहीं। थोड़ा सा आपको स्किल्स पे काम करने पड़ेगा, थोड़ा नहीं, अगर आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने लर्निंग के साथ ही स्किल्स पे काम कर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि अगर आपको भीड़ से अलग दिखना है, the uniqueness you have to bring in yourself is something you have to add on your skills and you have to furnish that also, okay। So hope कि ये वीडियो आपको informative लगा हो, और you can comment also कि मैंने अगर कहीं पे मतलब कहीं कुछ रह गया हो तो बेसिकली तो मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं फार्मा से रिलेटेड। और अगर किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क, रिप्लाई तो देती ही है आपकी दीदी, ठीक है। थोड़ा टाइम लग जाता है बट ठीक है, ओके।